Thank you, Assis. And again, thank you all to attend this online classes. And I think you all have seen my video on YouTube, John DeCosta English Guru. If you don't, then please go and search in YouTube, where you can see my name. Just put it my name, John DeCosta English Guru. And I would like to request you. You have seen my many videos that last 6 days I have been uploading on YouTube. I just would like to request all my viewers, if you really like my videos, like my way of teaching, please try to share, like, and subscribe, and especially just bell button. There's a bell button. If you put it, then definitely that the video which I'm going to upload, you can get information about it. Now, this is a part 4, basic structure part 4 that I'm just starting to teach. In my last video, in my last lecture, that what I had given about structure number, I think 14, it was subject plus should be and should have been. It's now the next same basic structure. Structure is, give a heading, block 1. What are the structure? Structure is subject plus out, O-U-G-H-T, out to be, plus noun, pronoun, adjective, adverbs. Subject plus out to be, O-U-G-H-T, out to be, plus noun, pronoun, adjective, adverbs. This is a block number 1. Structure is out to be. See an example, such as, before going to teach this word out to be, I like to mention one more structure over here, that what I taught in my earlier classes, should be. Where we use should be. What is the differences between should and out? Let me tell you that should, it is used when you need to express advice and suggestion. When you are advising someone, when you are suggesting someone, then we use should be. And out to be, same, but it is an emphatic advice. It is an emphatic suggestion. It is used for compulsion as well as an obligation. Let us know some example here. What I have written, आपको नेता होना ही चाहिए. आपको नेता होना ही चाहिए मीन्स यहां पर क्या हो गया, मजबूरी. मजबूरी है यहां पर. इसके पहले लग रहा था आपको नेता होना चाहिए, तो आपने बनाया you should be a leader, you should be there, you should be here, you should be on time, you should be regular, you should be my friend. But now it is not a kind of advice and suggestion, it is completely an emphatic advice and suggestion. So as far as emphatic advice of suggestion is concerned, we apply this structure when you are going to express about someone information. आपको नेता होना ही चाहिए. You ought to be a leader. What? You ought to be a leader. You ought to be a leader. आपको टीचर होना ही चाहिए. Then you ought to be a teacher. आपको डायरेक्टर होना ही चाहिए. You ought to be a director. आपको मेरा मित्र होना ही चाहिए. You ought to be my friend. And see the next example. उसको भूखा रहना ही चाहिए. उसको भूखा रहना ही चाहिए. That means
he ought to be hungry. He ought to be hungry. उसको भूखा रहना ही चाहिए. आपको डायरेक्टर होना ही चाहिए. Then you ought to be a director. You ought to be a director. आपको अकेले रहना ही चाहिए. You ought to be alone. And where we use this structure, it is used for present as well as future. Present as well as future. Now, रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन होना ही चाहिए. रोहित शर्मा ought to be the captain of Indian cricket team. आपको मेरा दुश्मन होना ही चाहिए. You ought to be my enemy. आपको रेगुलर होना ही चाहिए. You ought to be regular. You ought to be regular. So this is a great example for ought to be. Now, this is a structure for present future. And now, dear, if you would like to change this sentence, convert this sentence, present future to past, then what to do? A very simple thing that you have done. Very simple thing. The same example, ought to be. आपको डॉक्टर होना ही चाहिए. You ought to be a doctor. आपको क्रिकेटर होना ही चाहिए. You ought to be a cricketer. आपको ड्राइवर होना ही चाहिए. You ought to be a driver. But now you are going to change this structure in past. Then instead of ought to be, and I have a request to all. मैं अब पढ़ाते जा रहा हूं, आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ऐसे क्या होगा कि बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा. फिर लास्ट का जो 5 मिनट्स होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो प्लीज आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय कैंडिडेट्स हु इज नॉट अटेंडिंग माय क्लासेस, so please take a screenshot. Now the second, just write down when I'm teaching. Now if you want to convert this sentence in past, then what you have to do? For past, there's a little change that it is my obligation to do. If you want to convert this sentence in past, like आपको नेता होना ही चाहिए था. आपको नेता होना ही चाहिए था. Then we have a structure. What? Subject plus ought to have been. Subject plus out. O-U-G-H-T. Ought to have been. इसके पहले आपने बी लगा दिया तो क्या बन गया वो? प्रेजेंट फ्यूचर. अब क्या लगाया आपने? Have been. It's now past. बी लगाया प्रेजेंट फ्यूचर. Have been लगाया past. आपको नेता होना ही चाहिए था. You ought to have been a leader. आपको क्रिकेटर होना ही चाहिए था. You ought to be a cricketer. आपको डांसर होना ही चाहिए था. You ought to have been a dancer. हम लोगों को रेगुलर होना ही चाहिए था. We ought to have been regular. सचिन को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच होना ही चाहिए था. सचिन ought to have been the coach of Indian cricket team. रवि शास्त्री को पाकिस्तान का कोच होना ही चाहिए था. रवि शास्त्री ought to have been the coach of Pakistan cricket team. ये क्या हो गया? पास्ट हो गया. उसको भूखा रहना ही चाहिए था. तो क्या हो जाएगा? He ought to have been. He ought to have been hungry. आपको अकेले रहना ही चाहिए था. क्या हो जाएगा? You ought to have been alone. राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए था. तो क्या हो जाएगा? राबड़ी देवी ought to have been the chief minister of what? बिहार. नरेंद्र मोदी को सन्यासी होना ही चाहिए था. तो नरेंद्र मोदी ought to have been
ascetic. Ascetic मतलब होता है सन्यासी, योगी. ASCETIC, ascetic. नरेंद्र मोदी out to have been ascetic. हम लोगों को ड्राइवर होना ही चाहिए था. We ought to have been a driver. आपको मेरा मित्र होना ही चाहिए था. You ought to have been my friend. चलिए, this is all about present, future and past. We have taught, I have taught the structure ought to be and ought to have been. It's all clear. Now the next one. And if you don't mind, my all YouTube viewers, that if you have got any sort of questions, you can give a comment. And yeah, WhatsApp me that 990-5393-251, and we will discuss on my WhatsApp. You can directly send my messages that what kind of problem you are going to face, that when you are watching my video. And all my candidates, that if you are having a problem, so don't bother. After end of the classes, before 5 minutes, definitely we will discuss over this structure that which I have been teaching. Now the next one, again for present, future. And a structure is must be. Structure is must. And see, here I have what I have mentioned: present, future, present, future, present, future. लेकिन इसका मीनिंग भी वही होगा. देखो इसका दो सेंस निकलेगा. Let me tell you one example. But इसका यूज कब करते हैं? जैसे आपने should का यूज किया कब? To express advice and suggestion. Advice and suggestion. और ought to be का यूज to express emphatic advice and suggestion, जोरदार सलाह एवं सुझाव. And now the next one is must be. And where we use must be, it is used to express necessities. Necessities, that means आवश्यकता, जरूरत. Like आपको नेता अवश्य होना चाहिए. आपको नेता अवश्य होना चाहिए. Why I need to say such a sentences? Suppose your grandfather was a leader. Your grandfather of a father was a leader. Your grandfather, father of a leader. Your father is a leader. Your mother is a leader. Your brother is a leader. Your sister is a leader. So it's necessities that to join politics. And at that moment, I have to say, if I wanted to say this sentence in Hindi, then what I have to say? आपको नेता अवश्य होना चाहिए. Why? Because it is a necessity. यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसी सेंटेंस का एक और अर्थ निकलेगा in हिंदी for future point of view. आप नेता अवश्य बनेंगे या आप नेता अवश्य होंगे. आप नेता अवश्य बनेंगे, आप नेता अवश्य होंगे. देन देखिए, नंबर 1, आपको नेता अवश्य होना चाहिए. ये प्रेजेंट में हो गया, सॉरी फ्यूचर के लिए होगा. और आप नेता अवश्य होंगे, मैं आपको गेस कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो. लेकिन आपने ड्रेस पहन रखा है खादी, तो मैं गेस कर रहा हूं तुम नेता है. यस तुम अवश्य नेता होगा. अब आप चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैं आपके चेहरे से बता, ओ तुम अवश्य भूखे होगे. देन you must be a leader. You must be a leader. It has a two meaning. आपको नेता अवश्य होना चाहिए या आप नेता अवश्य होंगे. वो अवश्य भूखा होगा. He must be hungry.
वे लोग अवश्य पागल होंगे। दे मस्ट बी गॉन ऑफ, दे मस्ट बी गॉन ऑफ। नीतीश कुमार अवश्य यहां होगा, नीतीश कुमार मस्ट बी हियर। आपको वहां अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी देयर। आपको यहां अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी हियर। आपको क्रिकेटर होना चाहिए, यू मस्ट बी अ क्रिकेटर। आपको ड्राइवर होना चाहिए, यू मस्ट बी अ ड्राइवर। आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड स्पीकर। आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, यू मस्ट बी अ लिसनर। ये मैं आपको आपको आवश्यकता बता रहा हूं क्या क्या होना चाहिए। मैं गेस करता हूं, क्या रोहित शर्मा अवश्य एक अच्छा स्पीकर होगा, है नहीं है डोंट नो, बट होगा बिकॉज ही इज अ क्रिकेटर। सो रोहित शर्मा मस्ट बी अ गुड स्पीकर। पृथ्वी शा अवश्य एक अच्छा बैट्समैन होगा, पृथ्वी शा मस्ट बी अ गुड बैट्समैन। श्रेयस अय्यर भारत का अगला अवश्य कप्तान होगा, श्रेयस अय्यर मस्ट बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम। भारत अवश्य विश्व कप विजेता होगा, इंडिया मस्ट बी अ वर्ल्ड कप चैंपियन। सो दिस इज ऑल अबाउट मस्ट बी। Must be. Where we use for necessities. Clear? I think all clear. If you have any sort of question, please give a comment on this, write down, yeah, message me. I will solve all the problems now. चलिए, अब now we have to convert the sentence in past. Past में भी दो सेंस निकलेगा, same structure. But there is a little change. What kind of changes that I have to do? आपको नेता अवश्य होना चाहिए था, आपको नेता अवश्य होना चाहिए था, या आप नेता अवश्य रहे होंगे। अवश्य होना चाहिए था या अवश्य रहे होंगे। देन स्ट्रक्चर इज व्हाट मस्ट हैव बीन। सिंपल सा रूल है, मैंने अगले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में भी, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताया है, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू मस्ट। आपने रूल देखा होगा, वेरी 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 डिफरेंट रूल। कैन, कुड, मे, माइट के बाद आपने बी लगाया, सेंटेंस बन गया प्रेजेंट फ्यूचर। कुड, माइट के बाद आपने हैव बीन लगाया, सेंटेंस बन गया पास्ट। इन सेम कंडीशन अप्लाई इन शुड। शुड में बी लगाया, प्रेजेंट फ्यूचर। आउट टू में बी लगाया, प्रेजेंट फ्यूचर। मस्ट में बी लगाया, प्रेजेंट फ्यूचर। और इसको पास्ट बनाने के लिए क्या किया आपने, शुड में हैव बीन लगाया, पास्ट। आउट टू में हैव बीन लगाया, पास्ट। अगेन मस्ट में हैव बीन लगाया, पास्ट। आपको नेता अवश्य होना चाहिए था या आप नेता अवश्य रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव बीन अ लीडर। यू मस्ट हैव बीन अ लीडर। आपको ड्राइवर अवश्य होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन अ ड्राइवर। आपको टॉकेटिव अवश्य होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन अ टॉकेटिव। आपको भरोसेमंद अवश्य होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन रिलायबल। आपको मिलनसार अवश्य होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन अफेबल। आपको चुगलखोर अवश्य होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन शटमरवा। आपको एक्टिव अवश्य होना चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन एक्टिव। उन लोगों को, या वे लोग, उन लोगों को नहीं, वे लोग अवश्य, दे मस्ट हैव बीन माई फो। दे मस्ट हैव बीन माई फो। वे लोग अवश्य मेरे दुश्मन रहे होंगे, है नहीं, रहे होंगे। या अवश्य होना चाहिए था, ये भी बोल सकते हो, रहे होंगे, रहे होंगे। दे मस्ट हैव बीन माई फो। वे लोग अवश्य मेरे मित्र रहे होंगे, दे मस्ट हैव बीन माई फ्रेंड। वे लोग अवश्य मेरे क्लासमेट रहे होंगे, दे मस्ट हैव बीन माई क्लासमेट। भारत अवश्य
सॉरी, पाकिस्तान अवश्य भारत का अंग रहा होगा। पाकिस्तान मस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी अवश्य एक अच्छे सोशल वर्कर रहे होंगे। महात्मा गांधी मस्ट हैव बीन अ ग्रेट सोशल वर्कर। सो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया पास्ट। यानी आपने क्या लगाया था? बी, इसके पहले बी लगाया, इट्स प्रेजेंट फ्यूचर। फिर क्या लगाया? हैव बीन, क्या बन गया? पास्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। Okay, let me tell you, there is a structure in basic which never use in present, which never use in future. It is always used only in past, only in past. अब जो मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी किसमें यूज नहीं होगा? प्रेजेंट में। किसमें नहीं होगा? पास्ट में। ये कब यूज होगा? कहां यूज होगा? ओनली इन पास्ट। प्रेजेंट फ्यूचर में कभी यूज नहीं होगा। इट ऑलवेज यूजेस ओनली इन पास्ट। स्ट्रक्चर क्या है? क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी। यूज्ड, USED, used to be. Let me tell you, let me introduce about myself. A very short sentence. Like, what I have written? मैं छात्र हुआ करता था. And now I'm a teacher. हुआ करता था यानी एक समय था जिस समय मैं छात्र था. अब last 21 years I have been teaching. 21 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ. 21 साल से मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. Everybody knows. लेकिन मैं शिक्षक थोड़ी ही पैदा हुआ था. मैं शिक्षक पैदा नहीं हुआ था. मैं पहले क्या था? स्टूडेंट. तो मैं क्या बोलूंगा? मैं छात्र हुआ करता था. I used to be a student. क्या बोलेंगे? I used to be a student. मैं छात्र हुआ करता था. वे लोग पागल हुआ करते थे. They used to be gone off. They used to be gone off. मैं ड्राइवर हुआ करता था. I used to be a driver. महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे. महात्मा गांधी यूज्ड टू बी फ्रीडम फाइटर. सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन हुआ करता था. सौरव गांगुली यूज्ड टू बी द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. अब तो है नहीं. तो लालू यादव यूज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे. मनमोहन सिंह यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया means what? Used to be is such kind of a structure which always used only in past, never in present, never in future. Never in present, never in future. See, one thing more important I would like to tell all to my dear students. जो मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, अब उसको मैं कैसे यूज करूं, कैसे हेल्प करूं, कैसे वो मुझे हेल्प करेगा. सी, इट्स कंप्लीटली लॉकडाउन. अभी लॉकडाउन है. स्टे एट होम एंड स्टे एट होम एंड प्लीज बी सेफ योरसेल्फ. वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हिच यू हैव टू डू. आपके घर में बहुत सारे रफ कॉपी होंगे जो बेकार होंगे, जो यूजलेस है, यूजफुल नहीं. जितने सारे स्ट्रक्चर हैं,
जो मैंने आपको बताया अभी तक, उन सभी पर आप एग्जाम्पल्स बनाए, कंप्लीट एग्जाम्पल्स आपको वहां होना चाहिए, शुड बी देयर, नॉट इन हिंदी. लेट मी टेल यू अगेन जेंटलमैन, you can make all that kind of example in which only English is used, not Hindi. See, I'm not teaching translation. I'm teaching to use this structure. And this structure, it can be used when you put it down some regular sentences on your copy and practice it. Like, I'm going to be a doctor, I'm going to be an engineer, I'm going to be a teacher, I'm going to be regular, I'm going to be hungry, I'm going to be thirsty. I was going to be a doctor, I was going to be a teacher, I was going to be regular, I was going to be hungry, I was going to be thirsty. I am to be a teacher, I'm to be a dog, I'm to be the cat, I'm to be regular, I'm to be hungry, I'm to be thirsty, I'm to be affable, I'm to be reliable. I was to be reliable, I was to be affable, I was to be Satamorba. I had been a teacher, I had been a teacher, I have been a student, I had been a student, I can be, could be, maybe, might be a teacher, I could have been a teacher, I should be a teacher, I should have been a teacher, I ought to be a teacher, I ought to have been a teacher, I must be a teacher, I must have been a teacher, and the last but not the least, I used to be a teacher, I used to be a student, I used to be a dancer. तो जितना एग्जाम्पल्स आप अपने कॉपी में बनाओ, खुद बनाओ. हाँ, वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू, गलत ना हो उसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अभी जो मैं ब्लॉक 1, यहाँ आपने देखा होगा मैंने लिखा ब्लॉक 1, तो ब्लॉक 1 में जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ रिलेटेड होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स. यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं होगा. लाइक मैं जाया करता था, तो यहाँ पे आई यूज टू बी गो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी खुद एक वर्ब है. बी क्या है? खुद एक वर्ब है. उसके बाद फिर वर्ब कैसे लगेगा? इसके बाद क्या लगेगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स. ऐश्वर्या विश्व सुंदरी हुआ करती, यू नो वेल. ऐश्वर्या यूज्ड टू बी मिस वर्ल्ड. मिस वर्ल्ड हुआ करती थी, अब है पूरी नहीं. तो यहाँ पे हुआ करती थी, होना क्या है? एक वर्ब है. तो हम लोग वर्ब यहाँ यूज कर चुके हैं. इसके पहले भी जितने भी स्टेज मैंने बताया सब में वर्ब यूज है. बी वर्ब यूज है, हैव बीन वर्ब यूज है, बीइंग इट्स अ पार्ट ऑफ बी, तो बीइंग भी एक वर्ब है. तो इसमें हम लोग को वर्ब नहीं लगाना. तो आज आप लोग सभी का होमवर्क है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल, जितना भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है सब पे 5 एग्जांपल्स बना करके आप मुझे सेपरेट व्हाट्सएप करें 9905393251, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि आप कितना एग्जांपल्स आप रियली में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं करते. 9905393251. क्लियर? चलिए रिकॉर्डिंग को खत्म कीजिए आशीष.